بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد احمد علی۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ لانگ مارچ میں حکومت کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گی، مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں اپوزیشن والے پہلے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے، اب سارے مفاد پرست اکٹھے ہو گئے ہیں۔ بلاول بھٹو 3 سال کا حساب لینے کے لیے اسلام آباد ضرور آئیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ہمارا دامن صاف ہے، حساب دیں گے، ہم احتساب سے گھبرانے والے نہیں، ہم بھی آپ سے 15 سال کا حساب مانگنے آئے ہیں۔ لندن میں حسیب نامی 2 سالہ بچے کے قتل کا ڈراپ سین، قاتل بچے کی چچی اور ماموں نکلے۔ تھانہ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق حسیب کو خاندانی رنجش پر چچی نے اپنے ماموں کی مدد سے گلا دبا کر قتل کیا۔ گجرانوالہ کے نواحی تھانہ نوشہرہ ورکہ میں شادی کی تقریب کے دوران ہوائی فائرنگ، گولی لگنے سے چھت پر کھڑا 7 سالہ بچہ جاں بحق جبکہ 15 سالہ طیب زخمی ہو گیا۔ پولیس نے ملزم راحیل اور اس کے والد کو گرفتار کر لیا۔ میرپور ماتھیلو کے نواحی گاؤں صدیق کلوڑ میں زمین کے تنازع پر جھگڑا، ڈنڈوں کے آزادانہ استعمال سے دونوں گروپوں کے 7 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں عبداللہ، ظفر، نواز، خادم تصور، آفتاب اور بابو شاہ شامل ہیں۔ جامپور میں تھانہ پولیس جرائم پیشہ عناصر کے خلاف متحرک، تھانہ حاجی پور کی ٹیم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 10 لاکھ روپے سر کی قیمت والے خطرناک اشتہاری کو گرفتار کر لیا۔ شہریوں نے پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ میاں چنو پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کامیاب کارروائی کرتے ہوئے عزیز اللہ خان نامی ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 30 لاکھ روپے مالیت کی ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ اور کرونا وائرس سے 20 افراد دم توڑ گئے، اموات کی مجموعی تعداد 30,173 ہو گئی۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 36,803، 847 نئے کیسز رپورٹ۔ کرونا مثبت کیسز کی شرح 2.1% ریکارڈ کی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں، وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ بھارت نے تارے زمین پر فلم بنائی اور پاکستان نے 27 فروری 2019 کو فلم تیارے زمین بنائی۔ آپ کو بتائیں کہ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ عالمی سیاست کے پردہ سکرین اور باکس آفس پر تیارے زمین پر سپر ہٹ رہی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کو سلام عقیدت کے جنہوں نے مودی اور ابھینندن کے بندھن کو تباہ کر دیا، کسی کو پاکستان کی طرف سے میلی آنکھ دیکھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ 27 فروری 2019 کو پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب دیتی رہی دنیا اور اب تک راتوں کی نیند اڑاتا ہے۔ حکومت اور افواج پاکستان اور عوام دفاع پاکستان کے لیے کوئی بھی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ فیاض الحسن چوہان وزیر اعظم عمران خان ملک کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے بچانے کے لیے پرعزم جدوجہد میں مصروف ہیں۔ اوکاڑا میں سینئر سول جج خلیل احمد نے جشن بہارا کلین اینڈ گرین مہم کے تحت فیملی کورٹ میں پودا لگایا اور واک کی۔ آپ کو بتائیں کہ ان کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کو ایک چیلنج کے طور پر لینا چاہیے اور اس سے نمٹنے کے لیے ہر شخص اور ہر ادارے کو اقدامات کرنا ہے۔ وطن عزیز کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے ہر شخص اپنے حصے کا پودا لگائے
اور اس کی دیکھ بھال کرے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے درخت ہی بہترین تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جشن بہاراں کلین اینڈ گرین مہم پاکستان کے تحت فیملی کورٹ کے لان میں پودا لگانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے فیملی کورٹ کے لان میں مولسری کے پودے لگائے۔ انہوں نے کہا کہ کلین اینڈ گرین پاکستان مہم میں جوڈیشل افسران اور وکلاء بھرپور حصہ لیں۔ بعد ازاں جشن بہاراں کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے تحت سینئر سول جج خلیل احمد نے آگاہی واک کی قیادت بھی کی۔ کراچی میں پیپلز پارٹی لانگ مارچ رابطہ مہم کی تیاریاں جاری ہیں۔ پیپلز پارٹی ایم این اے قادر پٹیل اور ایم این اے آغا رفیع اللہ نے ملیر کے علاقوں کا دورہ کیا۔ دیکھتے ہیں راجہ بلوچ کی رپورٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اعلان کردہ لانگ مارچ کے سلسلے میں کراچی سمیت ملیر میں بھی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ایم این اے قادر پٹیل نے ملیر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے ملیر پہنچ گئے اور ایم این اے آغا رفیع اللہ کی جانب سے تیار ہونے والی بسوں، کنٹینروں اور بڑے پینا فلیکس کے جاری کام کا معائنہ کیا اور لانگ مارچ کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا اور مختلف علاقوں میں قائم کیمپوں کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر ایم این اے سید آغا رفیع اللہ نے کہا کہ ملیر سے جیالوں کا سمندر لانگ مارچ کے لیے نکلے گا اور اپنے قائد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ لانگ مارچ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ثابت ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بن کر ملک کو ایک مرتبہ پھر خوشحال بنائیں گے۔ اس موقع پر سینئر رہنما عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ 27 فروری مزار قائد سے پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ شروع ہوگا، جو کہ کراچی کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ملیر پہنچے گا، جہاں پر پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا شاندار استقبال ہوگا۔ کیمرہ مین ممتاز۔ ڈیرہ غازی خان کے وسط میں بہنے والی مانکا کینال سے شہری اذیت میں مبتلا ہونے لگے۔ گندے پانی کے تعفن سے مختلف بیماریاں پھوٹنے لگیں۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر بلدیات سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے۔ مانکا کینال کی صفائی کے لیے سالانہ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، مگر مانکا کینال میں تاحال گندا پانی بند نہیں ہو سکا۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر بلدیات سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کینال کی صفائی کو یقینی بنایا جا سکے اور شہریوں کو بیماریوں سے نجات ملے۔ کراچی میں پیپلز پارٹی لانگ مارچ رابطہ مہم کی تیاریاں بھرپور انداز میں جاری ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد اسامہ کی رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں پیپلز پارٹی کی طرف سے کیمپ لگا کر 27 فروری کے لانگ مارچ کی تیاریوں کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا۔ اس تقریب میں پی ایس 97 کے صدر ستار بروہی اور یو سی 39 کے صدر رانا عارف، جنرل سیکرٹری محمود حسین میاں کے علاوہ کمیٹی ممبران تہذیب خان، عمل خان بروہی، قادر بخش، ارشد میوں کے علاوہ کئی ممبران نے شرکت کی۔ پی ایس 97 کے صدر ستار بروہی نے اس لانگ مارچ کو پر امید قرار دیتے ہوئے کہا کہ 24 گھنٹہ ہم لوگ آن سروس میں ایم پی ایس کے ساتھ ہیں، تو ہماری تیاری ہے انشاءاللہ کل 10 بجے قائد اعظم مزار سے لے کر انشاءاللہ تعالی ٹھٹا اور ڈائریکٹ حیدرآباد، مورو، سکر جیسے پھر پنجاب میں داخل ہوں گے تو سیدھا انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے 8 تاریخ تک انشاءاللہ تعالی۔ پرزور سے پرجوش سے جیالے ماشاءاللہ تیار ہیں۔ اس کے علاوہ پی ایس 97 کے جنرل سیکرٹری محمود حسین میاں نے کہا کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے چیئرمین محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 فروری لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف۔ اصل میں اس سلیکٹڈ حکومت نے پاکستان کو اس دھیانے پہ کھڑا کر دیا کہ مہنگائی تو ایک طرف کر دو، میرے کو تو ڈر ہے کہ یعنی پاکستان کی سالمیت پہ انہوں نے سودے بازی کر لی ہے۔ کشمیر تو ویسے ہی پہلے انہوں نے بھیج دیا تھا، اب ہمیں ڈر ہے کہ پاکستان کو ٹکڑے نہ کر دے۔ تو اس کے لیے ہمارے جیسے کہ چیئرمین صاحب نے محسوس کیا کہ ہم پاکستان کو بچانے نکلیں اور لانگ مارچ کا اعلان کیا انہوں نے۔ انشاءاللہ پورا پاکستان ان کا ساتھ دے گا۔ اللہ نے چاہا تو اتنی عوام ہوگی، میں جیالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بھرپور طریقے سے ایک نیوٹرل جو عوام ہے جو مطلب بغیر سیاست کے، وہ بھی انشاءاللہ چیئرمین صاحب۔ ٹھری میرواہ میں مہران ہائی وے پر تیز رفتار کوچ کھائی میں جا گری، بچوں اور خواتین سمیت 20 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں عادل کھرل، مجاہد کھرل، دانش شاہ، یونس قریشی اور مجید قریشی سمیت دیگر شامل ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی خیرپور فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچے اور زخمیوں کو ریسکیو کروایا۔ زخمیوں کو رانی پور اور ٹھری میرواہ اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ 3 زخمیوں کو حالت غیر ہونے کی وجہ سے گمسن اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹھری میرواہ میں مہران ہائی وے پر تیز رفتار کوچ کھائی میں جا گری، بچوں اور خواتین سمیت 20 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں عادل کھرل، مجاہد کھرل، دانش شاہ، یونس قریشی اور مجید قریشی سمیت دیگر شامل ہیں۔
सियालकोट में रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद का सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन का दौरा, माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया। देखिए मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की रिपोर्ट। नुमाइंदा सियालकोट के मुताबिक रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद ने इंस्पेक्शन टीम के हमरा जिला सियालकोट के हेडक्वार्टर सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन कचहरी रोड का दौरा किया और माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद एहसान ने स्टेशन और गाड़ियों की इंस्पेक्शन करवाई। इस मौके पर रेस्क्यूज ने परेड का अमली नमूना पेश किया, जिसकी कमांड LFR नदीम अख्तर ने की। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने स्टाफ की यूनिफॉर्म, ज़ाहरी हालत, रिकॉर्ड, गाड़ियों के हालात, स्टेशन की बिल्डिंग का मुआयना किया और अकाउंट, टेक्निकल, कम्युनिटी के रिकॉर्ड का भी जायजा लिया। उन्होंने खसूसी तौर पर कंट्रोल रूम के रिकॉर्ड भी चेक किया और कंट्रोल में मसरूल होने वाली कॉल सुनी। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यूज की कारकर्दगी को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया और ज़रूरी हदायत भी दी। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि ठट्ठा में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी हैं। 27 फरवरी को कराची मज़ार कायद से शुरू होने वाले अवामी लॉन्ग मार्च की तैयारियां ठट्ठा में अरूज पर हैं। अवामी लॉन्ग मार्च के हवाले से जयालों और आवाम में जोशो खरोश पाया जाता है। पीपल्स पार्टी ठट्ठा मुकामी क़यादत की जानिब से अवामी लॉन्ग मार्च की तैयारियां हतमी मरहले में हैं। घग्घर फाटक से ठट्ठा सजावल बदीन तक अवामी लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए भरपूर तैयारियां की गई हैं। मेन कौमी शाहरा के दो अतराफ पार्टी परचमों के बाहर है। लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए इस्तकबाली कैंप भी कायम किए गए हैं। वजीराबाद में मुस्लिम हैंड्स इंटरनेशनल और अंजुमन बहबूदी मरीजा के ज़ेरे तमाम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में नई मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन का क्या कहना था, आइए जानते हैं। ज़्यादा बेहतर नहीं थी, तो अब ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सैयद शाह जी का, मुस्लिम हैंड के वालों का, कि इनकी तावन की वजह से दोबारा हमारा मस्जिद बनाने का प्लान जो है ये पाया तकमील तक पहुँचा है। और खूबसूरत हो तो पुरसकून होते हैं, इसी तरह इस जगह को पुरसकून बनाया जाए ताकि हॉस्पिटल के अंदर आने वाले जो मरीज़ हैं, जब वो दुखी हो, तकलीफ में हो, तो यहाँ आकर सरबसजूद हो और अल्लाह के हज़ूर दुआएं करें अपने। आगे बढ़े, आपको बताएं कि दीना मांगला की हुदूद में छामला के मुकाम पर बोरी बंद लाश बरामद हुई। मकतूल की शनाख्त नज़ाकत हुसैन वल्द मोहम्मद अयूब के नाम से कर ली गई। नज़ाकत हुसैन 3 रोज से लापता था। लवाहिकीन ने नाश को शनाख्त कर ली है। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। आपको बता रहे हैं कि दीना मांगला की हुदूद में छामला के मुकाम पर बोरी बंद लाश बरामद हुई। मकतूल की शनाख्त नज़ाकत हुसैन वल्द मोहम्मद अयूब के नाम से कर ली गई। नज़ाकत हुसैन 3 रोज से लापता था। लवाहिकीन ने नाश की शनाख्त कर ली। मकतूल 4 बच्चों का बाप था। सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में दयालान इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से तफरीही सरगर्मियों का पंडाल का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से मुकर्ररीन का क्या कहना था, आइए जानते हैं। आपको बताएं कि सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में दयालान इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की तफरीही सरगर्मियों का पंडाल का इफ्तिताह कर दिया गया। इस हवाले से मुकर्ररीन का क्या कहना था, आइए जानते हैं। Authorized by the General Entertainment Authority. We organize events, festivals, sport events, all kind of entertainment music events, all kind of events. This will last inshallah Month until
कोर्ट डीजी में जराइम की बढ़ती हुई वारदातें, नामालूम मुसल्लह मुलजिमान पुलिस एहलकार को यरगमाल बनाकर सरकारी हथियार छीन कर ले गए। आपको बताएं कि मुसल्लह मुलजिमान ने पुलिस एहलकार अली को यरगमाल बनाया और सरकारी असलहा, मोटरसाइकिल और नकदी छीन ली। पुलिस एहलकार अली खैरपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर तैनात है। इतला मिलने पर जाए वकूआ पर पुलिस की भारी नफरी और इलाका मकीन पहुंच गए। पेशावर गवर्नर हाउस में कामयाब जवान प्रोग्राम की तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में तैमूर सलीम झगड़ा और उस्मान डार ने खुसूसी शिरकत की। देखते हैं इश्तियाक नूर चमकनी की रिपोर्ट। गवर्नर हाउस पेशावर में कामयाब जवान प्रोग्राम का खुसूसी इन्नेकाद, जिसके मेहमान खुसूसी गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा जनाब शाह फरमान साहब, वजीर आजम के माउन खुसूसी बराए कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार, सूबाई वजीर सेहत व खजाना तैमूर सलीम झगड़ा, वजीर आला के माउन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पुख्तनख्वा बारिस्टर सैफ अली खान ने खिताब करते हुए कहा कि अब तक जवान प्रोग्राम के तहत 1 अरब तक कर्जा नौजवानों को दिया गया। 40 अरब रुपए से 26,000 खानदानों को रोजगार फराहम किया गया। कमजोर तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को कामयाब प्रोग्राम में शामिल किया गया। खैबर पुख्तनख्वा में सेहत इंसाफ प्रोग्राम से गरीब आवाम को सहूलत फराहम की जा रही है। इस माह से कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम भी शुरू किया गया। कामयाब पाकिस्तान से भी नौजवान कर्जा ले सकेंगे। 5 प्रोग्रामों में नौजवानों को शामिल किया गया। नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोशिश की जा रही है। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि चीन अभी ह्यूमन रिसोर्स की वजह से आगे जा रही है। नौजवानों को मुख्तलिफ स्कॉलर्स सेक्टर में स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। पेशावर नवाज शरीफ ने 10 लाख लैपटॉप तकसीम किए। लैपटॉप सिर्फ अपने तस्वीर लगाने के लिए तकसीम किया गया। लैपटॉप स्कीम से किसी नौजवान को रोजगार मुहैया नहीं किया गया। इमरान खान का विजन नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए इक़दामात। गवादर में कस्टम अमले की कामयाब कार्रवाई, अंदरूनी मुल्क मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। औथल के मुकाम पर मशकूक गाड़ी से 8.5 किलोग्राम आइस क्रिस्टल बरामद कर ली गई, जिसकी कीमत 26 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बताएं कि खुफिया इतला मिलने पर कस्टम्स स्टाफ औथल ने अंदरूनी मुल्क जाने वाली कार का ताकुब किया। स्मगलर्स कस्टम हुकाम को देखकर कार छोड़कर फरार हो गए। नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जंग में एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद शाद ने कत्ल के मुलजिम का जेल ट्रायल करके उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया। मुलजिम इससे कबल भी कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत का कैदी था। जंग से देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। जंग में एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद शाद ने फौरी इंसाफ देने के लिए जराइम पेशा और इंसानियत को नाहक कत्ल करने वाले मुलजमान को कानून के मुताबिक सजा देना शुरू कर दी। थाना मसन के इलाके रशीद मकतूल गुलाम अब्बास को मुलजिम आशिक हुसैन मजावर ने साल 2004 में पिस्टल के फायर मारकर कत्ल किया था। जुर्म साबित होने पर मुलजिम को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। देखें, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं बड़ी मेहनत से काम कर रही है, अपनी जो ड्यूटी है अपने फराइज को बड़े एहसन अंदाज से सर अंजाम दे रही है। और जहाँ तक फैसलों की बात है तो फैसले हमेशा एविडेंस की बुनियाद पे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन पे होती हैं, और जो असिस्टेंस होती है वकला की अदालतों ने उस पर फैसले करने होते हैं। तो जहाँ पे एविडेंस सही होती है, इन्वेस्टिगेशन ठीक होती है, तो ट्रायल कोर्ट्स मुजरिम को कैपिटल सेंटेंस सुनाती हैं और सजाएं देती हैं। और जहाँ इन्वेस्टिगेशन ही नाकिस हो या प्रॉपर असिस्टेंस ना हो तो वो जो एक्विटल होती है मुलजमान की, जनरल पब्लिक समझती है कि अदालतें काम नहीं कर रही, अदालतें मुलजमान को छोड़ रही हैं, अदालतों ने एविडेंस पे फैसले करने होते हैं। तो ट्रायल कोर्ट्स के फैसलों पे मैं मुतमईन हूँ कि ट्रायल कोर्ट जो है वो इंसाफ दे रही हैं। अगर इसी तरह अदालतों में मेरिट पर फैसले होते हैं तो में कमी आ सकती है। PTI के आगाज करता सिंध हुकूक मार्च का दूसरा मरहला हुकूक मार्च जैकबाबाद पहुंचकर कयाम करेगा। मार्च की रवानगी से कबल शुरका के मुख्तलिफ थानों से तवाज़ो की जाएगी। इस हवाले से मुकर्रीरीन का क्या कहना था, आइए जानते हैं। इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने मार्च का आगाज किया। ये मार्च जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारे सिंध के सदर और वफाकी वजीर
अली जैदी साहब की क़यादत में शुरू हो चुका है। और जैसा आप सब ने देखा कि जगह जगह कूचे कूचे सिंध के भाइयों ने बहनों ने किस तरह वालिहाना हमारा इस्तकबाल किया, और ये इस चीज़ का इजहार करता है कि सिंध तरसा हुआ है। सिंध तरसा हुआ है एक ऐसी मूवमेंट के लिए जो पीपल्स पार्टी के ड्रैकुला जो इस सिंध गुम्बट में कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। रेलवे इंतजामिया ने गुम्बट स्टेशन का तरक्याती काम शुरू करवा दिया। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फरहान बलोच से। जी फरहान बलोच, बताइएगा क्या सामने लेकर आए थे हम? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, कुछ दिन पहले कोहिनूर पर खबर नशर होने के बाद रेलवे इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। रेलवे इंतजामिया का नोटिस लेने के बाद गुम्बट स्टेशन का तरक्याती काम शुरू होने के बाद अवाम में खुशी की लहर। मजीद अवाम से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। मैं सबसे पहले तो तमाम चैनल्स के साथ साथ कोहिनूर का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पर कवरेज की, और कवरेज करने के बाद जो है रेलवे मिनिस्टर की जानिब से नोटिस लेकर हमारे स्टेशन गुम्बट का तरक्याती काम शुरू किया गया है और हम इस काम से बहुत मुतमिन हैं। हम रेलवे वजीर को ये भी मुतालबा करते हैं कि खुदारा यहाँ पर जो है तमाम ट्रेनों का स्टाफ भी किया जाए और यहाँ पर बर्थ और सीट कोटा बढ़ाई जाए। वो वजह ये है कि यहाँ पर किम्स हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज भी है, जो जहाँ से जो है स्टूडेंट जो है बहुत दूर दराज से पढ़ने के लिए आते हैं और स्टूडेंट को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वो रोहड़ी का रुख करते हैं, तमाम ट्रेनों का स्टाफ रोहड़ी किया जाता है। तो हमारी जो है रेलवे वजीर से और रेलवे मिनिस्टर से यही गुजारिश है कि खुदारा यहाँ पर जो है स्टेशन गुम्बट पर सीट और बर्थ कोटा भी बढ़ाया जाए और तमाम ट्रेनों का स्टाफ किया जाए ताकि आने वाले तमाम मुसाफिर, स्टूडेंट और मरीजों को रिलीफ मिल सके। उससे मुतालबा करते हैं कि उसका चीज़ का भी नोटिस लें कि यहाँ पर जो तमाम ट्रेनें वो रोकी जाए ताकि मुसाफिरों को कोई रिलीफ मिल सके। और हमारी जो बहुत शुक्रिया फरहान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कमालिया में शहर में जारी तरक्याती मंसूबों के हवाले से अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत सूबाई वजीर विमेन डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आशफा रियाज फत्याना और असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कम्बो ने की। देखते हैं आरजे जावेद भट्टी की रिपोर्ट। सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आशफा रियाज फत्याना और असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कम्बो की ज़ेर सदारत कमालिया शहर में जारी तरक्याती मंसूबों की प्रोग्रेस बारे इजलास मुनक्किद किया गया। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आशफा रियाज फत्याना और असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कम्बो की ज़ेर सदारत शहर में जारी तरक्याती मनसूबाजात की प्रोग्रेस बारे एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें एक्सियन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फकीर शब्बीर, एक्सियन वापडा तुफैल रंधावा, म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज मोहम्मद सगीर चौधरी, एसडीओ पब्लिक हेल्थ सईद तारिक, सब इंजीनियर एहसान यूसुफ, मुदस्सिर इकबाल, मोहम्मद सलीम समेत दीगर ने शिरकत की। सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आशफा रियाज फत्याना ने म्यूनसिपल अफसरान को सेवरेज लाइन की तब्दीली बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने समेत मजीद मुतबादिल इंतजामात करने की हिदायत की। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और एक्सियन पब्लिक हेल्थ को काम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। इस मौके पर साफियों से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आशफा रियाज फत्याना ने कहा कि सेवरेज लाइन्स की तब्दीली से शहर के कुछ इलाकों में मसाइल हैं जिनसे बाखूबी वाकिफ हूँ और मुतबादिल बेहतर इंतजामात के लिए मुतलका महकमा को हदायत। बुलेटिन में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि लाहौर में सैयदा नाज नामी खातून की जानिब से दर्ज करदा मुकदमे का मामला एसपी कैंट ईसा सुखेरा के हुक्म पर डीएसपी बरकी सर्कल हाफिज अब्दुल माजिद और एसएचओ हीर ने जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुएकार लाकर झूठ का पर्दाफाश कर दिया। सैयदा नाज नामी खातून ने अपनी बदैयत में अगवा और जनाबिल जबर का झूठा मुकदमा थाना हीर में दर्ज करवाया था जिसका नोटिस वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब ने भी लिया था। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर मौजूद हैं। वसीम साबिर, बताइएगा क्या मामला था, क्या झूठ का पर्दाफाश हुआ? देखिए, थाना हेर में ज्यादती का मामला, खातून सैयदा नाज ने मुकदमे को गलत करार देते हुए अदालत के अंदर 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। याद रहे कि खातून से ज्यादती के मामले का नोटिस वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार समेत आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने लिया था, जिसके बाद एसपी
सेंट ईसा सुखेरा की हदायत पर DSP सर्कल बरकी हाफिज अब्दुल माजिद और SHO थाना शेर मोहम्मद कादिर ने दिन रात अनथक मेहनत करके खातून को तलाश किया और असल अकायद जो है वो बंदरिया पर लाए गए, जबकि खातून सईदा नाज ने अपने बयान में कहा है कि मुझे किसी ने दीदा दिनिस्ता तौर पर झूठा बेबुनियाद मुकदमा दर्ज करने के लिए उकसाया था, जो कि झूठ पर मबनी था। लिहाजा ना किसी ने मेरे साथ कोई ज्यादती की है, ना मुझे ज्यादती का निशाना बनाया गया है और ना ही मुझे अगवा किया गया है। जबकि खातून ने इससे कबल भी शहरियों पर मुख्तलिफ थानों में जना बिल जबर के मुकदमा दर्ज करवा रखे थे, जिसको पुलिस की जानिब से खारिज कर दिया गया था, क्योंकि खातून शहरियों पर ज्यादती के इल्जाम लगाकर रकम बटोरती रही थी। ताहाल खातून के अदालती बयान के बाद आइंदा चंद दिनों में थाना हेर में होने वाला मुकदमा जो है वो जो दर्ज किया गया था उसको भी जो है वो चंद रोज में खारिज कर दिया जाएगा। जबकि अवाम की बात करें तो अवाम ने भी कहा है कि ऐसी खवातीन अपनी मुखालफत और किसी बड़ी रकम के लालच में बेगुनाह शहरियों को जो है वो मुकदमे फंसाकर उन पर इल्जाम तराशी करके जो है वो न सिर्फ पुलिस का वक्त जाया करती है बल्कि शहरियों की इज्जत पर दाग भी लगा देती है। इसी तरह से लाहौर के शहरियों का भी ये कहना था कि ऐसी खवातीन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए, ताकि आइंदा से ना किसी की इज्जत पर दाग लगे और ना ही महकमा पुलिस का कोई टाइम जाया हो सके। जिस पर जो है वो वजीर आला पंजाब और इसके अलावा IG पंजाब के अलावा SP कैंट में जो है वो हाफिज अब्दुल माजिद और SHO हेर राना अब्दुल कादिर को जो है वो नकद इनाम भी दिया है, जिन्होंने जो है वो झूठ से पर्दाफाश किया। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की 24 साल बाद पाकिस्तान आमद। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। मजीद जानेंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद मलिक से। आपको आगाह कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की 24 साल बाद पाकिस्तान आमद हुई है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इससे कबल 24 साल पहले पाकिस्तान आई थी, जबकि 24 साल बाद अब दोबारा से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है। पाकिस्तान में 24 साल बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया टीम की आमद हुई है। आपको बता रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी में होटल भी पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद वनडे मैचेस और टेस्ट मैचेस की सीरीज का जो है वो आगाज हो जाएगा। जबकि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। आपको बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की 24 साल बाद पाकिस्तान आमद। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए खुशाइंद है कि 24 साल बाद पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम की आमद हुई है और उससे होटल में सख्त सिक्योरिटी में पहुंचा दिया गया है। मजीद डिटेल्स जानेंगे, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर नवीद मलिक से। नवीद मलिक, बताइएगा कैसी सिक्योरिटी है और टीम्स अब तक होटल में पहुंच चुकी हैं? जी बिल्कुल, बिलअख्तर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया टीम कुछ दिन होटल में करतीनिया की पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबाइन सीरीज का पहला टेस्ट मैच जहां मार्च पिंडी में सारी इस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में बाबर आजम, अमानुल हक, फवाद आलम, साजिद खान, नमान अली, सऊद शकील और सरफराज अहमद शामिल हैं। और जो कल इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, अजहर अली और नसीम शाह कल इसको ज्वाइन करेंगे। जी नवीद मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लंदन के इलाके मौजा मोहल में हसीब नामी 2 साला बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिल बच्चे की चची और मामू निकले। थाना पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हसीब को खानदानी रंजिश पर चची ने अपने मामू की मदद से गला दबाकर कत्ल किया। मुलजिमा सलमा बीबी और मुलजिम आबिद को गिरफ्तार कर लिया गया है।
डोंगा बोंगा में लड़की को पसंद की शादी के बाद वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश करना जुर्म बन गया। शोहर ने घर वालों के हमरा बीवी को मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल कर दिया। देखते हैं इस्लाम सुल्तानी की रिपोर्ट। बोंगा के नवाही इलाका में लड़की का पसंद की शादी के बाद वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश करना जुर्म बन गया। शौहर ने घर वालों के हमरा बीवी को मुबैना तौर पर जहर देकर कत्ल कर दिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। 18 साल मुकद्दस ने 3 माह कबल आमद नामी नौजवान से पसंद की शादी की थी। बेटी का वालिदैन से मिलने के इसरार पर ससुराल वाले तशद्दुद करते थे। बेटी का शौहर अक्सर बेईमाना तशद्दुद करता था। वालिदैन ने मुकदमे में मौक़िफ़ अपनाया है। पुलिस ने शौहर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। गुजरांवाला के नवाही थाना नौशहरा विरका में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग, गोली लगने से छत पर खड़ा 7 साला बच्चा जामहक जबकि 15 साला तैयब जख्मी हो गया। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब में दुल्हो के छोटे भाई राहिल ने हवाई फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिम राहिल को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करने पर मुलजिम के वालिद गुलजार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सीपीओ का कहना है कि खानदान के बड़ों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बच्चों की इस्लाह करनी चाहिए थी। दक्की माइंस एरिया में 11,000 केवी से करंट लगने से 12 साला लड़का जामहक हो गया। शनाख्त समीउल्लाह वल्द अली गुल मुल्ला खील सकना कुल्ली मुल्ला अब्दुल्ला के नाम से हुई है, जो जरूरी कार्रवाई के बाद नाश वर्सा के हवाले कर दी गई। मीरपुर मैथेलो के नवाही गांव सदीक कलोड़ में सैयद बरादरी से जमीन के तनाजे पर झगड़ा, डंडों का आजादाना इस्तेमाल, दोनों ग्रुप्स के 7 अफराद जख्मी हो गए। अब्दुल्ला, जफर, नवाज, खादिम, तसव्वुर, आफ्ताब और बाबू शाह जख्मियों में शामिल हैं। 2 जख्मियों बाबू और आफ्ताब शाह की हालत तशवीशनाक है, जिनको रहीम यार खान रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों ग्रुप्स की इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं ला जा सकी। थाना सिटी के मोहल्ला ख्वाजागाह नारोवाल में नौजवान तालिब इल्म पर तशद्दुद, वीडियो वायरल होने पर पुलिस थाना सिटी ने एक्शन लेते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। लड़की को छेड़ने के इल्जाम लगाकर मुलजिमों ने तालिब इल्म को अगवा किया और बरहना करके वहशियाना तशद्दुद करते रहे, जिस दौरान तालिब इल्म माफी मांगता रहा, लेकिन मुलजिमान को रहम ना आया। वीडियो वायरल होने पर एसएचओ थाना सिटी महमूद भट्ट ने डीपीओ नारोवाल मुमताज कामरान के हुक्म पर फौरी एक्शन लेते हुए दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस सर्कल जामपुर जराम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहरिक थाना हाजीपुर की टीम ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए सर की कीमत वाले खतरनाक इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया। शहरियों ने खतरनाक मुजरिम की गिरफ्तारी पर पुलिस थाना हाजीपुर की कारकर्दगी को सराहा है। राजनपुर समेत पंजाब भर के इजला में वारदातें करने वाला अजीमा जंदानी नामी इश्तिहारी गिरफ्तार। 14 साल से पंजाब पुलिस को मतलूब था। डीपीओ राजनपुर मोहम्मद अफजल के मुताबिक मुलजिम के सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर थी। इश्तिहारी अजीमा जंदानी सूबा भर के मुख्तलिफ इजला के मुतअद्दिद गैंग से मुंसलिक था, जिस पर कत्ल, डकैती, राहजनी जैसे मुतअद्दिद संगीन मुकदमा दर्ज थे। मुलजिम को हेरोइन, इंटेलिजेंस, जदीद टेक्नोलॉजी और दीगर जराए की मदद से गिरफ्तार किया गया। बहावलनगर के थाना ए और बी डिवीजन की कारकर्दगी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस, डीपीओ की हिदायत पर डीएसपी ने तफसीलात से आगाह किया। मजीद जानते हैं शहबाज सरवर की रिपोर्ट में। आईजी पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार की हिदायत पर बहावलनगर जिले पुलिस की शानदार कारकर्दगी के हवाले से थाना सिटी बी डिवीजन बहावलनगर में डीएसपी सदर सर्कल नदीम अफजाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर इनके हमरा
SHO थाना सिटी A डिवीजन मेहर अब्दुल जब्बार और SHO थाना B डिवीजन सज्जाद सिंधु भी मौजूद थे। इस मौके पर DSP सदर सर्कल नदीम अफजाल का कहना था कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सिर्फ इसलिए कि हम जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, पुलिस वाले जो गुड वर्क कर रहे हैं, उसकी तशहीर भी होनी चाहिए। हमारे पे जो कुछ चंद लोगों की वजह से जो हमें अच्छा रिकमेंड्स नहीं किए जाते, तो जो हम अच्छा काम करते हैं, गुड वर्क करते हैं, तो उसकी भी तशहीर होनी चाहिए। तो लिहाजा इस सिलसिले में मेरी ये तीसरी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम मीडिया का और इधर की पब्लिक का कि ये हमारे जो भी गुड अच्छा काम करने पे हमें इन्होंने हमेशा अप्रिशिएट किया है और हमारी कोशिश भी यही है कि हम इंशाल्लाह अपनी मेहनत करते रहेंगे और इसी तरह से कार्रवाई करके मुलजमान को उनको कैफरे किरदार तक पहुँचवाएंगे। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि मियां चन्नू पुलिस की कार्रवाई, 30 लाख रुपए की हेरोइन बरामद, मुलजिम अजीजुल्लाह खान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया। DSP नासिर साकिब SHO थाना छब आसिफ चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि गिरफ्तार मुलजिम अजीजुल्लाह खान तहसील और जिला बन्नू का रहायशी है जो कार में मुनशियात सप्लाई करता था। ASI गुल सरफराज ने इलाका पुल मुसाफिर पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। जेर इस्तेमाल कार भी तहवील में ले ली गई। तीन रोज में बारखां शहर से 3 नौजवानों की गुमशुदगी से शहर में खौफ व हरास फैल गया। आज बारखां नौजवान इत्तेहाद की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। नौजवान इत्तेहाद के बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली बैनुल सूबाई शाहरा को मुकम्मल तौर पर बंद करने की धमकी दी गई है। 2 रोज कबल बारखां शहर से डॉक्टर जमील बलोच को अगवा किया गया जो कि मलेशिया यूनिवर्सिटी से DVM करने वाला वेटनरी डॉक्टर हैं। गुज़िश्ता रात फिर 2 नौजवानों को रात के वक्त उनके घर से अगवा किया गया। शाहजैन और नसीम जो कि बारखान में नौजवान इत्तेहाद के सरबराह हैं जिन्होंने हाल ही में बोगस डोमिसाइल के खिलाफ तहरीक चलाई। ख्याल किया जा रहा है कि इन तीनों नौजवानों को इसी पादाश में अगवा किया गया है जिनकी बाजियाबी के लिए आज नौजवान इत्तेहाद की कॉल पर मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। नौजवान इत्तेहाद ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर इन तीनों नौजवानों की बाजियाबी को जल्द यकीनी ना बनाया गया तो हम बलूचिस्तान को पंजाब से मिलाने वाली बैनुल सूबाई शाहरा को मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। नाजरीन, पुलिस ने बरामद होने वाला सोना मुबैना तौर पर तब्दील कर दिया। मुतासरा सराफ ने मालखाना से सोना वसूल किया तो वो जाली निकला। मजीद जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह की रिपोर्ट में। लकी मरवत पुलिस मालखाने के एहलकारों ने डाकुओं से बरामद होने वाला सोना मुबैना तौर पर तब्दील कर दिया। लकी मरवत शहर में कुछ अरसा पहले डाकुओं ने दिन दिहाड़ी बशीर खान जरगर की दुकान को लूट लिया था। डाकू 80 तोला सोना और नकदी साथ ले उड़े थे। अहले इलाके की जानिब से शदीद एहतजाज के बाद पुलिस ने सराय नवरंग के वेट लॉस कैसे किया जा सकता है कम टाइम स्पैन में? राइट डाइट, राइट वर्कआउट, राइट रूटीन, राइट गाइडेंस। 3 माह नाज़रीन, बहुत कम शख्सियात होती हैं कि जो दिल से मिलती हैं आपसे। जब कोई आता मैं कहता हाँ तेरा भी हो गया गारा, वो कहता है इतनी जल्दी तो कोई भी नहीं मानता। पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट्स किए हैं, कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं वहाँ पर नहीं गई। ये बड़ा करम है मेरे ऊपर मौला का। अगर वो एक्टिंग है, मॉडलिंग है, सिंगिंग है, ये कुछ भी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली खुद को ग्रूम करें। ऐसे ही बैठे हुए गाना गाना शुरू कर दिया। लैला ज़ुबैरी, उन्होंने कहा कि आप गाना क्यों नहीं गाते? हमारे घर में टीवी नहीं था, ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं कहता था ना कि गाना सुनाओ तो पूरा पूरा गाना सुनाती। ओह माय गॉड। देखिए मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग रोजाना सुबह 10 बजे। मैं हूँ आपका होस्ट फारूक भट्ट। मैं हूँ आपका होस्ट फारूक भट्ट। मैं तो जाके तो आप बिनु में कहते हो मुझे पानी पिला दो। मैं हूँ आपका हामिद फारूक।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान के आबाई हल्का इंतखाब में अरबों रुपए की लागत से जेर तामीर चापरी डैम पानी बर्दाश्त न कर सका। दीवार में 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। हुकूमत की तरफ से लगाए गए अरबों रुपए जाया होने का खदशा है। तहसील ईसाखेल के पहाड़ी इलाके चापरी में 3.5 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाला डैम इफ्तिताह से पहले ही मुबैना तौर पर करप्शन की नजर हो गया। वजीर आजम इमरान खान के खुसूसी इक़दामात पर उनके आबाई हल्का में चाचली नाला पर चापरी के मुकाम पर डैम की तामीर का काम आखिरी मराहिल में है और कुछ दिन बाद उसका बाकायदा इफ्तिताह होना था, जो नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल से पहला पानी ही बर्दाश्त ना कर सका। जब बाकायदा तौर पर पानी डैम में छोड़ा गया तो डैम की दीवार में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है, जिससे मौके पर मौजूद कंट्रैक्टर की गाड़ियां और सामान भी पानी में बह गया। हुकूमत की तरफ से लगाए गए अरबों रुपए जाया होने का खदशा है। अहले इलाका ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस मंसूबे में मुबैना तौर पर सामने आने वाली करप्शन की तहकीकात कराने का मुतालबा किया है। खिपरू में रोशन तारा हाई स्कूल में पहला फूड फेस्टिवल, बच्चों की तरफ से मुख्तलिफ अशिया खुरनोश के स्टॉल्स लगाए गए। मजीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की रिपोर्ट। रोशन तारा हाई स्कूल खिपरू में पहला फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों ने मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाए, जबकि कुछ बच्चियों और बच्चों ने गेम, कोल्ड ड्रिंक, गोलगप्पों समेत दीगर खाने पीने वाली चीजों के स्टॉल लगाए। इस मौके पर रोशन तारा हाई स्कूल के चेयरमैन एडवोकेट अब्दुल गफ्फार लगारी, मुनीर लगारी, स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश कुमार खत्री, हरीश केबीसी, इम्तियाज शाह समेत स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन ने बड़ी तादाद में फूड फेस्टिवल में शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नज़ारा है, बच्चों में बहुत जोश विलवला है और हम भी खुद बहुत मुतमईन इत्मीनान से हैं और हमारे उस्ताद असातिज़ा हज़रात जिन्होंने ये काविशें की हैं उनकी भी इन काविशों को मैं सराहता हूँ और ये हम पहली दफ़ा यहाँ पे कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है और इसके लिए हमें बाकी दूसरों के साथ भी मिलकर भी आइंदा के लिए इससे भी बड़े प्रोग्राम। नाजरीन, पत्तोकी में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर कसूर और CEO हेल्थ ने बच्चों को कतरे पिलाकर किया। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर हदफ पूरा किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कसूर की मरीजों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की गई। मुहिम 4 मार्च तक जारी रहेगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज मोहल ने एमरजेंसी वार्ड, जनरल वार्ड का विजिट करके सहूलियात का जायजा लिया। मुस्लिम लीग नून बहावलपुर सूबा बहाली पर आवाम के साथ खड़ी है। साबिक सेनेटर सऊद मजीद का कहना है कि चोलिस्तान के कल्चर को खत्म करके कोशिश की जा रही है। मजीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून बहावलपुर सूबा बहाली पर आवाम के साथ खड़ी है। जब भी नए सूबे बनेंगे बहावलपुर सूबा जरूर बहाल होगा। चोलिस्तान को मुसलसल नजरअंदाज और उसके सकावत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बल्दियाती इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, बल्दियाती की बजाय आम इलेक्शन होने के करीब है। सेनेटर सऊद मजीद ने अपनी रिहाइश गाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। उनके हमरा साद मसूद, अब्दुल खालिक गिल और दीगर चोलिस्तानी रहनुमा समेत चोलिस्तानी की अक्सर तादाद भी मौजूद थी। लाइव स्टॉक पे दुनिया में जहाँ पे भी एक्सपोर्ट करें आपको उसमें ममानियत नहीं है। इसके अलावा हमने खास चोलिस्तानियों के लिए जो प्रॉपर वहाँ के रहने वाले हैं और अभी नहीं रहते हैं, अलॉटमेंट के इजरा किया। वज़ीर आला पंजाब जब मियां शहबाज आरिफ वाला में डेंगू के हवाले से इंतजामिया की मीटिंग्स, मोहल्ला शमसाबाद और गफ्फार टाउन के करीब जोहड़ इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। मजीद जानते हैं रजा जैदी की रिपोर्ट में। आरिफ वाला जहाँ पर डेंगू के हवाले से बहुत से इंतजाम किए जा रहे हैं, वहाँ पर शहर की आबादी मोहल्ला शमसाबाद और गफ्फार टाउन के करीब 8 एकड़ जमीन पर बना गंदे पानी का जोहड़ इंतजामिया की नजरसानी का मुंतजिर है। इस जोहड़ के करीब नन्हे बच्चों का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी मौजूद है। अहलियान इलाका के मुताबिक इस जोहड़ में अब तक 3 बच्चे डूबकर जान गंवा बैठे, जबकि कई जानवर भी इस पानी की नजर हो चुके हैं। जब भी कोई हादसा पेश आता है तो वक्ती तौर पर इंतजामिया हरकत में आती है, मगर इसका मुकम्मल सद्देबाब न हो सका। इसके करीब रिहाइश पजीर लोग भी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आला हुकाम नजरसानी। कोहिनूर की खबर पर एक्शन, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक का नोटिस। वेटनरी टीम्स ने मुख्तलिफ देहातों में जानवरों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं फरीदाबाद से मुरीद चांडियों की रिपोर्ट में।
जी कोहिनूर न्यूज पर जानवरों के मरने की खबर नशर पर लॉ स्टाफ के डिप्टी डायरेक्टर जमाल ने नोटिस लेते हुए लॉ स्टाफ काजी आरफ के इंचार्ज डॉक्टर तौफीक अमन चन्ना अपनी डॉक्टरों की टीम के साथ नूरुद्दीन कुरैशी, अब्दुल जब्बार चांडियो, मंटार खोखर, बखत जमाल खोसो के साथ गांव अपरा अलीवाल दोस्तली चांडियो पहुंचकर 1000 से ज्यादा जानवरों को बीमारियों की बचाव की वैक्सीन की। उस मौके पर डॉक्टर तौफीक अमन चन्ना कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम हर एक गांव में जाकर जानवरों को गायें, बकरियां, ऊँट और दूसरे जानवरों को बीमारियों की बचाव की वैक्सीन कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वो हमारे टीमों के साथ ताउन करें और अपने जानवरों को बचाव की वैक्सीन करवाएं। कैमरामैन के साथ मुरीद चांडियो, कोहिनूर न्यूज, फरीदाबाद। टांक में डेरा रोड हताला के करीब अली अमीन गंडापुर ने गार्डन का इफ्तिताह कर दिया। गार्डन में जैतून के हजारों पौधे काश्त किए गए। मजीद जानते हैं आदिम खान की रिपोर्ट में। फाइज नाज ज़री मनसूबे का आज वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि कम सरमायाकारी से आप जैतून के बागात के मालिक बनकर सालाना लाखों रुपए कमा सकते हैं। तकरीब में सैकड़ों सरमायाकारों और ज़मींदारों ने शिरकत की। अली अमीन खान गंडापुर ने कहा कि KPK हुकूमत ने सुबह में ज़री इमरजेंसी प्रोग्राम शुरू कर रखा है। कुदरत का खालिक अल्लाह ताला दी ज़ात है। उन्हें हर इलाके ने जीते, उनके पानी के मुताबिक, उन जमीन के मुताबिक हर किस्म की फसल का, हर किस्म के दरख्त का एक बांधर रखा है जो सारे सारे मौजूद है। सारे इलाका के विच जो चरोगा उन्होंने बागात हैं। जैतून के पैदावार से जमींदार लाखों रुपए कमा सकते हैं। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।